Hello everyone, welcome to my channel. I hope that you all are healthy and hearty. Today we will be understanding a story named The Story of an Invitation. So, before starting the story, let's introduce ourselves with the main characters of the story. Firstly, we have Bertha, who is a pretty, cheerful, and a lovable girl. Then we have Grace, who is a quiet, grave, and a serious kind of a girl. Then we have Aunt Meg, who is a very nice lady. Now, as we all are acquainted with the main characters of the story, let's begin our chapter. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Her roommate, Grace Maxwell, was sitting on the divan by the window, looking out into the twilight. So here, Bertha Sutherland, she was coming back from the post office and hurriedly she was boarding the stairs of her boarding house, which was on the third floor. And her roommate, and she is Grace Maxwell. And she was sitting on a divan. Divan is kind of a bed. So she was sitting on a bed that was by the window, and she was looking outside through that window into the twilight. Twilight is the time when the sun has set and there is a little rosy light on the sky that you can see. Okay. Next, a year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. Bertha was bright, pretty, and popular, the favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl, dressed in mourning. She was quite alone in the world, the aunt who had brought her up having recently died. At first, she had felt shy with the bright and brilliant Bertha, but they soon became friends, and the year that followed was a very pleasant one. It was almost ended now, for the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. So here, Bertha एंड ग्रेस वो दोनों डार्ट माउथ में आए थे अपनी एकेडमी में, और उन दोनों ने खुद को एज अ रूममेट वहाँ पे पाया. बर्था एक बहुत ही ब्राइट, प्रिटी और पॉपुलर गर्ल थी जो सबकी फेवरेट थी, क्लासमेट्स की भी और टीचर्स की भी. जबकि ग्रेस थी वो बहुत ही चुप रहने वाली, हमेशा सीरियस सी रहने वाली और बिल्कुल भी चीयरफुल नहीं थी. उसकी ड्रेसिंग सेंस से लगता था कि वो बहुत दुखी है. ग्रेस इस दुनिया में अकेली थी. वो एक ऑर्फन थी, उसके मदर एंड फादर इस दुनिया में नहीं थे, और उसे जिस आंट ने बड़ा किया था वो आंट भी अब उनकी भी डेथ हो गई थी. पहले तो उसे बहुत ही शाई फील होता था बर्था के साथ रहने में, बिकॉज़ बर्था बहुत ही ब्रिलियंट थी और ब्राइट थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी. बट धीरे धीरे दोनों फ्रेंड्स बन गए और एक साल उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारा. अभी उस टर्म की एंड एंड एग्ज़ाम हो रहे थे, टर्मिनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और एक हफ्ते के अंदर ही छुट्टियां पड़ने वाली थी. Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily. I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. बर्था ने ग्रेस से कहा कि ग्रेस कुछ चॉकलेट्स लो. आज मुझे एक लेटर मिला है जिसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और मैं उसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. It's really fortunate the term is almost out, for I'm nearly bankrupt. I have just enough left to furnish a tuck-out for commencement night, and no more. उसके बाद बर्था ने
उस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उसने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद ली। कैरमल्स मीन्स चॉकलेट्स है। एंड शी सेड कि बहुत अच्छी बात है कि ये टर्म जो है अब वो ख़त्म होने को आया है, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट नियरली बैंकक्रप्ट मीन्स अब मेरे पास जो पैसे थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब बस उतना ही बचा है कि मैं एक दो ट्रीट्स या खाना वगैरह कुछ खा सकती हूँ। वॉट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस ने पूछा, अच्छा ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है, मुझे भी बताओ। यू नो आई हैव एन आंट, मार्गरेट, commonly known as Aunt Meg, out at Riversdale, don't you? There never was such a dear, sweet, jolly auntie in the world. I had a letter from her tonight. Listen, I'll read you what she says. और जब ग्रेस ने पूछा मुझे भी सुनाओ गुड न्यूज़ क्या है, तो बर्था ने बताया कि मेरी एक आंट है जिन्हें हम आंट मैग कहते हैं। वो रिवर्सडेल में रहती हैं और वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही जॉली और स्वीट नेचर की आंट हैं। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा है जो मुझे आज रात को ही मिला। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ उस लेटर में क्या लिखा है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी, माई डियर। Mary Fairweather and Louis Fishy and Lily Denise are coming too. So there is just room for one more, and that one must be yourself. Come to Riversdale when school closes, and I'll feed you on strawberries and cream and pound cake and donuts and mince pies and all the delicious, indigestible things that schoolgirls love and careful mothers condemn. अब बर्था ग्रेस को वो लेटर पढ़ के सुना रही है जिसमें आंट मैग ने बर्था से कहा है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हॉलीडेज मेरे साथ रिवर्सडेल में गुजारो। यहाँ पे मेरी फेयरवेदर और लुई फिशी और लिली डिनीस भी आ रहे हैं। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, तो अब बस एक के लिए ही जगह बची है। सो आई एम इन्वाइटिंग यू। तो जैसे ही तुम्हारे स्कूल फिनिश होते हैं तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज, क्रीम, पाउंड केक, डोनट, मिन्स पाइज और बहुत सी डिलीशियस चीज़ें खिलाऊंगी जो तुम जैसे स्कूल गर्ल्स को बहुत पसंद है और जो केयरफुल मदर्स होती हैं वो खाने से मना करती हैं, पर मैं तुम्हें ये सब चीज़ें खिलाऊंगी। मैरी लू, Mary and Lou and Lil are girls after your own heart, I know, and you shall all do just as you like, and we'll have picnics and parties and merry doings galore. और मैरी, लू और लिल ये सब तुम्हारे जैसी ही हैं और तुम सभी को पिकनिक्स पार्टीज़ बहुत पसंद है, तो जब तुम आओगी हम ये सब पिकनिक्स पार्टीज़ करेंगे और बहुत सारा एंजॉयमेंट करेंगे। Deo, said Bertha, looking up with a laugh. Isn't that lovely? How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you, said Grace wistfully. बर्था ने लेटर पढ़ने के बाद हंसते हुए उससे कहा कि कितनी अच्छी बात है ना, आंट मैग मुझे बुला रही हैं। और ग्रेस ने विस्टफुली थोड़ा सा दुखी होकर, सैड होकर कहा कि वाओ, यू हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स हु प्लान फॉर यू, जो तुम्हारे लिए प्लानिंग करते हैं, तुम्हें इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन, बोटी। As for me, I'm going into Clarkman's bookstore until school reopens. I saw Mr. Clarkman today, and he agreed to take me. So, Grace is saying कि तुम्हें इतने अच्छे वेकेशंस इंजॉय करने को मिल रही हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैं अपनी वेकेशंस क्लार्क्समैन बुक स्टोर में जाऊंगी, बुक स्टोर में जाकर वहाँ पे अपनी वेकेशंस को बिताऊंगी। आज मैं उनसे मिली थी और वो अग्री हो गई हैं मुझे वहाँ पे रखने के लिए। Bertha looked surprised. She had not known what Grace's vacations plans were. ये बात सुनकर बोथा एकदम से सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि ग्रेस के वेकेशंस प्लान क्या हैं। I don't think you ought to do that, Grace, she said thoughtfully. You are not strong and you need a good rest. It will be awfully tiring to work at Clarksman all summer. अब ग्रेस के प्लान सुन के बर्था ने
बहुत ही सोचते हुए थॉटफुली उससे कहा कि ग्रेस, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें बहुत से रेस्ट की ज़रूरत है। और अगर तुमने क्लार्क्समैन में काम किया, उस बुक स्टोर में सारे समर काम किया, तो तुम एकदम थक जाओगी। There is nothing else for me to do, said Grace, trying to speak cheerfully. You know, I'm as poor as the proverbial church mouse, Bertie, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. बर्था की बात सुन के ग्रेस ने कहा कि मेरे पास कुछ और करने को है भी नहीं इस समर्स में। थोड़ा चीयरफुल होके, खुश होके उसने ये बात कहने की कोशिश की। यू नो बर्टी, मैं उतनी ही पुअर हूँ जितना कि एक चर्च का माउस होता है, और अगर मैंने इस समर काम नहीं किया और पैसे नहीं कमाए तो मैं आने वाले विंटर्स में कोई भी आउटफिट वगैरह नहीं खरीद पाऊँगी। सो आई हैव टू अर्न फर्स्टली टू पे फॉर थिंग्स। I shall too I shall be too busy to be lonesome, and I shall expect long, newsy letters from you, telling me all your fun passing your vacation on to me at second hand, you see. Well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark, but I couldn't solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. ये कहते हुए ग्रेस ने कहा कि तुम अपने वेकेशंस को एंजॉय करना, और जो भी तुम वहाँ पे एंजॉयमेंट करो वो एक लेटर में लिख के मुझे लेटर्स बहुत सारे भेजते रहना। और अब मैं अपने अलजेब्रा के जो प्रॉब्लम्स थे जो मुझसे शाम को सॉल्व नहीं हुए, अब मैं वो सॉल्व करने बैठ रही हूँ। वो प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा स्टूपिड, इतने ज़्यादा हेवी प्रॉब्लम्स हैं कि अब मेरा सिर दुख रहा है, एंड आई फेल्ट स्टूपिड। सो मैं बहुत खुश होंगी जब ये एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे। I suppose I must revise that senior English this evening, said Botha absently. Botha ने भी कहा कि हाँ, शायद मैं भी सीनियर इंग्लिश को इस टाइम रिवाइज कर लेती हूँ। But she made no move to do so. She was studying her friend's face. How very pale and thin Grace looked. Surely much paler and thinner than when she had come to the academy, and she had not by any means been plump and rosy then. बर्था ने ये बोला कि मैं सीनियर इंग्लिश की रिवीजन करना स्टार्ट करती हूँ, बट वो उसको करने के लिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो बस अपने फ्रेंड ग्रेस के फेस की तरफ देखती रही, और वो ये सोचती रही कि ग्रेस का फेस कितना पेल है और वो कितनी थिन है। जब से वो इस एकेडमी में आई है वो और ज़्यादा थिन हो गई है, और बिल्कुल भी प्लम्प या रोज़ी बिल्कुल भी नहीं हुई है यहाँ पे आके। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months at Clarkman's, thought Botha. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. Or even if Aunt Meg had room for another guest, I would just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. Aunt Meg would understand, she always understands, but she hasn't, so it can't be. अब बर्था ने सोचा कि ग्रेस बिल्कुल भी 2 months उस बुक स्टोर में काम नहीं कर पाएगी, एज शी इज़ वेरी वीक इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन शी स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर मैं आंट मेग के पास वेकेशंस के लिए नहीं जा रही हूँ तो मैं ग्रेस को अपने साथ घर ले जाती, और अगर आंट मैग के पास एक रूम भी ज़्यादा होता तो शायद मैं ग्रेस को भी अपने साथ वहाँ ले जाती। और आंट मैग तो हमेशा मेरी बात को समझते हैं, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो ये बात ज़रूर समझेंगे। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बोथा's ब्रेन। उसी टाइम बर्था के ब्रेन में एक आइडिया आया। What nonsense, she said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. उसने ज़ोर से बोला व्हाट नॉनसेंस, और ग्रेस अचानक से शुक हो गई। व्हाट इज? ओह नथिंग मच, सेड बोथा गेटिंग अप ब्रिस्कली। सी हियर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम। तो फिर ग्रेस ने पूछा कि क्या हुआ, और बर्था ने कहा ओह कुछ नहीं, और वो फटाफट से वहाँ से चली गई, और उसने बोला कि मुझे कुछ काम है तो मैं वो काम कर लेती हूँ।
She curled herself up on the divan and tried to study her senior English. But her thoughts wandered hopelessly, and finally she gave it up in despair and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. दीवान बेड पर ही बर्था अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ने लगी, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी अपनी इंग्लिश की रिवीजन पे नहीं था। उसके थॉट्स जो हैं वो इधर उधर वैंडर करने लग गए, होपलेसली इधर उधर घूमने लग गए, और फाइनली निराश होकर वो बेड पे चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, और वो अपने बेड पे भी सो नहीं पा रही थी। शी ले अवेक, और वो जागी रही। एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, मतलब उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे वो बस उन्हीं को सोचती जा रही थी। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सैट अप इन बेड। आधी रात हो चुकी थी कि वो अपने बेड पे बैठ गई और उसने अकेले में कहा, आई विल डू इट, कि अब मैं ये ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट डे Bertha wrote a confidential letter to Aunt Meg. She thanked her for her invitation and then told her all about Grace. अगले दिन बर्था ने एक सीक्रेट लेटर आंट मैग को लिखा। पहले तो उसने आंट मैग को थैंक यू बोला कि उन्होंने उसे इनवाइट किया है, और फिर उसने ग्रेस के बारे में सब कुछ आंट मैग को बता दिया। And what I want to ask Aunt Meg is that you will let me transfer my invitation to Grace and ask her to go to Riversdale this summer in my place. Don't think me ungrateful. No, I'm sure you won't. You always understand things. But you can't have us both. And I would rather Grace should go. It will do her so much good. And I have a lovely home of my own to go to, and she has none. अब बर्था ने आंट मैग को लेटर में लिखा कि मैं चाहती हूँ कि आपने जो मुझे इनविटेशन भेजा है वो आप ग्रेस को दे दो, आप उसे ग्रेस को इनवाइट करो। आपके पास अभी 2 लोगों के लिए जगह तो नहीं है, तो आप मेरी जगह पे ग्रेस को इनवाइट कर लो। मुझे मुझे बिल्कुल भी अनग्रेटफुल मत समझना, मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं समझोगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप मेरी बात को समझोगे। तो आप प्लीज़ मेरी जगह पे ग्रेस को इनवाइट कर लो। मेरे पास तो जाने के लिए, समर वेकेशंस को बिताने के लिए मेरा घर है, बट उसके पास कुछ भी नहीं है। Aunt Meg understood, as usual, and was perfectly willing. So she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation for Grace. Aunt Meg बिल्कुल समझ गई, और उन्होंने बर्था की बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और वो इस बात के लिए मान भी गई। उन्होंने बर्था को लेटर लिखा और उसमें एक इनविटेशन ग्रेस के लिए भेजा। I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. Grace must never suspect that I did it on purpose. अब बर्था ने सोचा, मुझे इस बात को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। ग्रेस को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सीक्रेट लेटर आंट मैग को लिखा था कि वो मेरी जगह पे ग्रेस को इनवाइट कर लें। I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. मैं उसे ये बोलूँगी कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से मैं आंट मैग के इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं उनके पास रिवर्सडेल नहीं जा पाऊँगी। That is true enough. No need to say that the circumstances are hers, not mine. हाँ, ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है कि जो ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई हैं वो ग्रेस की वजह से हैं, ना कि मेरी वजह से। And I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. और मैं ग्रेस को सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैंने आंट मैग को बोला है क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी जगह पे ग्रेस को इनवाइट कर लो। When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her story and gave her Aunt Meg's cordial note. और उस दिन जब ग्रेस अपने हिस्ट्री एग्ज़ाम दे के घर वापस आई तो बर्था ने ये सारी स्टोरी ग्रेस को सुनाई और कहा कि आंट मैग ने तुम्हें इनवाइट किया है। यू मस्ट कम टू मी इन बर्थाज प्लेस, रॉट द लेटर। I feel as if I knew you from her letters, and I will consider you as a sort of honorary niece, and I'll treat you as if you were Bertha herself. उस लेटर में ये लिखा था,
आंट मैग ने कि मैं तुम्हें बर्था की प्लेस पे अपने पास बुला रही हूँ मेरे साथ वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है बर्था के लेटर्स से कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानती हूँ और मैं तुम्हें अपनी ऑनररी नीस मतलब मैं तुम्हें अपनी नीस की तरह ट्रीट करूँगी। और जैसे कि बर्था मेरे लिए है वैसे ही तुम मेरे लिए हो। Isn't it splendid of Aunt Meg? said Bertha diplomatically. Of course you'll go, Gracie. अब बर्था ने बोला कि कितनी अच्छी बात है ना, आंट मैग कितने अच्छे हैं। ऑफ कोर्स तुम ज़रूर जाओगी आंट मैग के पास। ओह, आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था? ग्रेस ने थोड़ा पजल्ड होके ये कहा, ओह मुझे नहीं पता मैं जाऊंगी या नहीं, क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं जा रही हो? Indeed, I do want to go dreadfully, said Bertha frankly. बर्था ने frankly ये बात कही, ओह मैं सच में जाना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। But as I have told you, it is impossible. पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, impossible है, कुछ ऐसे circumstances हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही। But if I am disappointed, Aunt Meg must not be. पर अगर मैं दुखी हूँ कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो Aunt Meg को disappoint होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जगह तुम ज़रूर जाओगी। And that is all about it. अब ये बात पक्की हो गई। In the end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. सो एंड में ग्रेस चली गई। वो थोड़ी सी पजल थी, थोड़ी सी डाउटफुल थी, बट अंदर से थोड़ी खुश थी कि वो सिटी में नहीं जा रही जहाँ पे इतनी सारी नॉइज़ और इतनी सारी हीट होगी। और बर्था वो अपने घर चली गई। बर्था वेंट होम feeling a little bit blue in secret. It cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. बर्था घर तो चली गई और शी वॉज फीलिंग अ लिटिल ब्लू, मतलब वो थोड़ी सी दुखी तो थी कि वो आंट मैग के पास नहीं जा पाई, बट उसके अंदर से बहुत अच्छा उसे फील हो रहा था कि अगर ये सब चीज़ें अगर दोबारा से ये सर्कमस्टांस उसके आगे आए कि उसे खुद जाना है या ग्रेस को भेजना है, तो वो दोबारा से ग्रेस को ही भेजेगी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। The summer slipped quickly by, and finally 2 letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. और जो समर्स थे वो फटाफट से वो समर वेकेशंस गुजर गई। बर्था को 2 लेटर्स मिले, एक बर्था को ग्रेस ने लिखा था और एक आंट मैग ने लिखा था। I have had a lovely time, wrote the letter. And oh, Bertie, what do you think? I am to stay here always. Oh, of course. I'm going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. अब जो लेटर ग्रेस ने लिखा था बर्था को, उसमें लिखा था कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या लगता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं हमेशा अब यहीं रहूँगी। हाँ ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट मंथ स्कूल रीजॉइन करने आऊँगी, बट आंट मैग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं हमेशा उनके अब पास ही रहूँगी और मैं उनके पास ही हूँ। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ। और बर्था को जो आंट मैग ने लिखा था लेटर, उसमें ये लिखा था, Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. You know, I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs. So I intend to adopt Grace. She is the sweetest girl in the world, and I am very grateful to you for sending her here. You will not know her when you see her. She has grown plump and rosy. Bertha folded her letters up with a smile. I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook, she said. So Aunt Meg के लेटर में लिखा था कि इस टाइम ग्रेस तुम्हें एक लेटर लिख रही है और वो तुम्हें बताएगी कि मैंने उसे यहाँ पे रुकने को कहा है। जैसा कि तुम जानती हो बर्था, मुझे हमेशा से ही एक डॉटर चाहिए थी, पर मेरे लालची भाई और बहनें जो हैं उन्होंने कभी मुझे अपनी कोई डॉटर नहीं दी। सो अब मैं ग्रेस को अडॉप्ट करना चाहती हूँ क्योंकि वो सबसे स्वीटेस्ट गर्ल है इस वर्ल्ड में, और मैं बहुत तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसे मेरे पास भेजा।
और अब जब तुम उसे देखोगी तो तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगी, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी रोज़ी हो गई है। और जब बर्था ने दोनों लेटर्स को फ़ोल्ड किया तो उसने खुद में सोचा कि कितनी अच्छी बात है। उसे एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी बुक में मैंने एक एंजल का काम किया है। उसने खुद से ये हंसते हुए कहा। So guys, this was the story, the story of the invitation. I hope that you enjoyed it, that you liked it, and if you did, please like this video, share it with your friends, subscribe to my channel, and for more stories, click the bell icon. Okay, now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, have a wonderful day ahead. Bye bye. Please click the like and subscribe button.